Hello students, welcome back to our YouTube channel Chemical Funda. In today's video, we are going to see laws of chemical combination. इनमें से फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. It is also called as law of conservation of matter. This law was given by a French scientist Antoine Lavoisier. He is also referred as father of modern chemistry. He conduct many experiments. Some experiments were combustion experiment. When he was burning phosphorus in the presence of air, he found that the weight gained by the phosphorus was exactly the same as the weight lost by the air, and he concluded that the total mass of reactants is equal to total mass of product. जब एंटोनी लिवॉइजियर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस और मर्क्यूरी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितना मास फॉस्फोरस ने गेन किया है बर्निंग के बाद, उतना ही मास एयर का भी लॉस हो गया है. सो ही कंक्लूडेड टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. There is no rise or drop in the weight of the matter during a chemical reaction. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जो मैटर है फ्रॉम द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता. रिएक्टेंट का मास केमिकल रिएक्शन में इंक्रीज नहीं होता और डिक्रीज भी नहीं होता. टू वेरीफाई दिस लॉ ही कंडक्टेड वन एक्सपेरिमेंट. सी, इन वन conical flask we have taken solution of calcium chloride, and in a test tube we have taken solution of sodium sulfate, and अगर हमने उसको वे किया सो यू विल गेट अ वैल्यू 300.23 ग्राम. ये दोनों का, ये पूरे सेटअप का कितना वेट है? 300.23 ग्राम. आफ्टर मिक्सिंग सोडियम क्लोराइड विथ सोडियम सल्फेट you will get a white precipitate of calcium sulfate in NaCl. You will get a calcium sulfate plus NaCl solution. And उसकी भी वैल्यू कितनी आई? 300.23 ग्राम. Now here reactants are converted into products. तो केमिकल रिएक्शन हो गया है, लेकिन मास ऑफ रिएक्टेंट इज रिमेन सेम एज द मास ऑफ प्रोडक्ट. रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मास कितना है? सेम है. सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो एंटोनी लिवॉइजियर गिवन स्टेटमेंट फॉर हिज लॉ एज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. मास जो है मैटर का, उसे हम क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, वो सेम ही रहेगा हमेशा. See one example. 2 molecules of hydrogen when reacted with 1 molecule of oxygen, you will get 2 molecules of water. 2 molecules of hydrogen means 4 hydrogen atom. 1 molecule of oxygen means 2 hydrogen atom. Okay, so 2 hydrogen atom and 4 hydrogen atom, 2 oxygen atom. In a product we got 2 molecules of water. In water molecule we are again having 4 atoms of hydrogen and 2 atoms of oxygen. So 4 atoms of hydrogen and 2 atom of oxygen का मास सेम ही रहेगा यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम्स और 2 ऑक्सीजन एटम्स के जितना. इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे भी प्रूव होता है. See one more example, burning of methane in presence of air. Methane reacted with oxygen to get carbon dioxide and water. So this is combustion reaction. ये combustion reaction में मीथेन का मास कितना है? 16 ग्राम. एक ऑक्सीजन मोलिक्यूल का 32 ग्राम. 1 ऑक्सीजन एटम का 16 ग्राम होता है. सो 1 ऑक्सीजन मोलिक्यूल का 32 ग्राम. यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स है और 2 मोलिक्यूल्स है, इसके लिए 2 इंटू 32 प्लस CO2 का 44 प्लस एक वाटर मोलिक्यूल का 18 ग्राम. यहाँ पे 2 वाटर मोलिक्यूल है, इसके लिए
2 × 18। मोलिकुलर मास और मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं इसके लिए हम एक वीडियो में देखेंगे। सो इसका अगर हमने एडिशन किया ये मोलिकुलर मास की, सो 32 × 2 64 प्लस दिस 16 यू विल गेट 80 ग्राम। यहाँ पे 44 प्लस 18 2 ज़ा 36, 36 प्लस 44 again you will get here 80 gram. So mass of reactant and mass of product remains same. Again law of conservation of mass verified. So we can say lastly, in a chemical reaction the total weight of the reactant is same as the total weight of the product formed due to chemical reaction, and this is called the law of conservation of matter. Chemical reaction में total weight of the reactant and total weight of the product सेम ही रहता है, एंड इसे ही हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आई हैव गिवन वन टेस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ट्राई टू सॉल्व दैट टेस्ट। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। वो टेस्ट अच्छे से सॉल्व कीजिए, आपके जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।